जय सद्गुरुदेव, जय पद शरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी परम संत महात्मा यशपाल जी महाराज का प्रवृत्ति में निवृत्ति गृहस्थ धर्म के लिए श्रीमद् भगवद गीता का गीता सुधा भाष्य अध्याय 8 श्लोक 25। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। मरने के समय वायु और कफ का प्रकोप होता है, जिससे अंतःकरण में अंधकार भर जाता है। उस समय इंद्रियां जड़वत हो जाती हैं, स्मृति भ्रम में पड़ जाती है, मन बहुत ही चंचल और क्षुब्ध हो जाता है और प्राण चारों ओर से दबकर घुटने लगते हैं। शरीरस्थ अग्नि का तेज नष्ट हो जाता है और चारों ओर केवल धुआं ही धुआं फैल जाता है, जिससे शरीर की जीवन कला का अंत हो जाता है। उस समय जीव में एक ऐसी स्तब्धता सी आ जाती है, जिसमें वह मरा हुआ भी नहीं होता और न होश में ही रहता है, और उसका जीवन मरने के किनारे पर पहुंचकर रुक सा जाता है। इस प्रकार उस जीव पर चारों ओर से मन, बुद्धि और इंद्रियों का दबाव पड़ता है, तो फिर जन्म भर के परिश्रम से प्राप्त किया हुआ फल व्यर्थ प्रायः हो जाता है, और जब हाथ में आई हुई वस्तु भी गंवा दी जाती है, उस समय यह तो कहा नहीं जा सकता कि वह वस्तु फिर से उस समय अर्जित की जा सकती है। बस प्राणों के प्रयाण के समय इसी प्रकार की दुर्दशा होती है। यह तो हुई शरीर की भीतरी अवस्था। अब यदि बाहर की परिस्थिति भी इसी प्रकार प्रतिकूल हो, अर्थात कृष्ण पक्ष हो, रात का समय हो, उस पर भी दक्षिणायन के 6 महीनों में से कोई महीना हो, अर्थात जिसके प्राणों के प्रयाण के समय जन्म और मरण का चक्र प्रचलित रखने वाले इस प्रकार के लक्षण एक साथ एकत्र हों, भला उसके कानों को ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति की बात कैसे सुनाई पड़ सकती है। जिस मनुष्य का देहपात ऐसी दुरावस्था में होता है, वह यदि बहुत पहुंचा तो केवल चंद्रलोक तक ही जा सकता है, और फिर कुछ काल के उपरांत इसी लोक में आकर दुनिया के झगड़ों में फंस जाता है। मैंने जिसे प्राण प्रयाण के लिए अकाल कहा है, वह यही है, और जन्म मरण के ग्राम तक पहुंचने वाला यही कष्टप्रद धूम्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त जो दूसरा अर्चरादि नामक मार्ग है, वह खूब रौनक वाला, स्वतंत्र, सब प्रकार की शांति और सुख से युक्त और ठेड़ निवृत्ति मोक्ष तक पहुंचने वाला है। Smoke night, the dark half of the moon, and the 6 months of the southern passage of the sun. Then going forth, the yogin obtains the lunar light and returns. This is the Pitriyana, or the path of smoke and darkness, or the path of the ancestors, which leads to rebirth. Those who do sacrifices to the gods and other charitable works with expectation of reward go to the Chandraloka through this path and return to this world when the fruits of their divine actions are exhausted. They have to return desired embodiments ordered by their individual Vasana balance that are ardently pressing for expression and fulfillment. Om. నా సద్గురు సందేశం గీతాసుధ పరసత్ మహాత్మా శ్రీ బాజీ మహారాజ్ వారి ప్రతిపాదించబడిన ప్రవృత్తిలో నివృత్తి గృహస్థ మార్గంలో గీతా భాష్యము అధ్యాయం 8 అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము శ్లోకము 25.
ధూమో రాత్రిస్తథా కృష్ణః సన్మాసాద్ దక్షిణాయనం తత్ర చంద్రమసం జ్యోతిర్యోగి ప్రాప్య నిరంతరే. మరణించే సమయంలో వాయువు మరియు కపముల ప్రకోపం జరుగుతుంది. అంతఃకరణలో అంధకారం నిండిపోతుంది. ఆ సమయంలో ఇంద్రియాలు చలనం లేనివైపోతాయి. స్మృతి భ్రమలో పడుతుంది. మనసు అతి చంచలము మరియు కల్లోలమవుతుంది. ప్రాణములు నలువైపుల నుండి అణచబడి ఊపిరాడని విధంగా నొక్కివేయబడుతూ ఉంటాయి. శరీర అంతర్గత అగ్ని యొక్క తేజము నశిస్తుంది మరియు నలువైపులా కేవలం పొగే వ్యాపిస్తుంది. దీనిచే శరీర జీవన జ్యోతి అంతమైపోతుంది. ఆ సమయంలో జీవి యందు ఎటువంటి స్తబ్దత వస్తుందంటే దానిలో మరణించడు, స్పృహలోనూ ఉండడు. అతని జీవితము మరణమంచుకు చేరి అక్కడ ఆగిపోతుంది. ఈ ప్రకారంగా ఆ జీవి యొక్క నలువైపుల నుండి మనసు, బుద్ధి, ఇంద్రియములు ఒత్తిడి పడుతుంది. అతని జీవితమంతా కష్టపడి సంపాదించిన ఫలితము సుమారు వ్యర్థమైపోతుంది. అంతేకాదు, చేతికి అందిన వస్తువు కూడా ఎప్పుడైతే అందకుండా పోతుందో అప్పుడు అతడు ఆ వస్తువును మరలా అప్పుడు సంపాదించగలగవచ్చు అని చెప్పలేడు. అంతే, ప్రాణాల ప్రయాణ సమయంలో ఈ విధమైన దుర్దశ కలుగుతుంది. ఇదంతా శరీరం లోపల జరిగే అవస్థ. ఇప్పుడు శరీరము బాహ్య పరిస్థితి కూడా ఈ విధంగా ప్రతికూలంగా ఉండవచ్చు. అనగా శరీరం విడిచే కాలము కృష్ణపక్షం కావచ్చు, రాత్రి సమయం కావచ్చు, అందులోనూ దక్షిణాయనంలో 6 నెలల్లో ఏదో ఒక నెల కావచ్చు. అనగా ప్రాణాలు పోయే సమయంలో జనన మరణాల చక్రాన్ని నడిపే ఈ విధమైన లక్షణాలు ఒక్కసారిగా ఏకమైనప్పుడు అహో భలే, అతని చెవుల్లో బ్రహ్మస్వరూప ప్రాప్తికి సంబంధించిన మాటలు ఎలా వినపడతాయి. ఏ మానవునికి దేహత్యాగ సమయమున ఇటువంటి దుర్దశ కలుగుతుందో అతడు బహుశా చేరుకుంటే కేవలము చంద్రలోకం వరకు చేరగలడు. మరలా కొంతకాలం తర్వాత ఇదే లోకంలోకి వచ్చి ప్రాపంచిక ఇబ్బందుల్లో చిక్కుకుపోతాడు. నేను దేని ప్రయాణం గురించి అకాలము అని అన్నానో అది ఇదే. జనన మరణముల గ్రామం వరకు చేర్చే ఈ కష్ట మార్గమే ధూమ్ర మార్గము. దీనికి భిన్నమైనది 2వ మార్గము అర్చిదాది మార్గము. ఇది పూర్తిగా కాంతివంతమైనది, స్వతంత్రమైనది, అన్ని విధాల శాంతి సుఖములతో కూడినది, అచ్చమైన నివృత్తి మార్గము, అనగా మోక్షం వరకు చేర్చున్నది. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. जय सद्गुरुदेव, जय प्रसरणम. जय गुरुदेव, जय प्रशरणम. अध्याय 8 श्लोक 25. मृत्यूच्या वेळी वात आणि कफाचा उद्रेक होतो, ज्यामुळे चेतना अंधकाराने भरून जाते. त्यावेळी इंद्रिय सुन्न होतात, स्मृती गोंधळते, मन अत्यंत अस्वस्थ आणि चंचल होते आणि प्राण सर्व बाजूंनी दाबला जाऊ लागतो. शरीरातील अग्नीची चमक नष्ट होते आणि सर्वत्र फक्त धूर पसरतो, ज्यामुळे शरीराचा जीव संपतो. त्यावेळी जीव इतका सुन्न होतो की तो मृतही नसतो आणि शुद्धीतही नसतो आणि त्याचे जीवन मृत्यूच्या उंबरठ्यावर येऊन थांबते. अशा प्रकारे मन, बुद्धी आणि इंद्रियामुळे आत्म्यावर सर्व बाजूनी दबाव येतो आणि आयुष्यभराच्या श्रमाचे फळ अनेकदा वाया जाते. जेव्हा मिळवलेली संपत्ती सुद्धा गमावली जाते, तेव्हा ती पुन्हा मिळवता येईल असे म्हणता येत नाही. आत्म्याच्या निर्गमनाच्या वेळी नेमकी हीच अवस्था असते. ही शरीराची आंतरिक अवस्था आहे. आता जर बाह्य परिस्थितीही त्याचप्रमाणे प्रतिकूल असेल, जसे की समजा कृष्ण पक्ष असेल, रात्री असेल, दक्षिण चंद्राच्या कृष्ण पक्षातील 6 महिन्यापैकी 1 महिना किंवा दक्षिणायन ज्याला आपण म्हणतो ते असेल, जेव्हा आत्म्याच्या निर्गमनाच्या सोबत जन्ममृत्यूने चक्र चालू ठेवणारी अशी लक्षणे दिसतात, तेव्हा परमेश्वराच्या प्राप्तीचा साक्षात्कार कसा काय होऊ शकतो. अशा अवस्थेत मरण पावलेली व्यक्ती शक्य झाल्यास केवळ चंद्रलोकातच पोहोचू शकते आणि काही काळानंतर या जगात परत येऊन जगाच्या संघर्षामध्ये अडकते. यालाच मी जीवनाच्या प्रवासातील दुष्काळ असे म्हटलेले आहे आणि हाच तो दुःखदायक धुराचा मार्ग आहे, जो जन्म मृत्यूच्या चक्राकडे नेतो. याशिवाय अर्चिराडी नावाचा आणखी एक मार्ग आहे. हा मार्ग अत्यंत चैतन्यमय, मुक्त, सर्व प्रकारची शांती आणि आनंदाने भरलेला असून तो खऱ्या निवृत्ती आणि मुक्तीकडे घेऊन जातो. धूर
रात्र, चंद्राची कृष्ण पक्ष, अर्धरात्री आणि सूर्याच्या दक्षिणायाचे 6 महिने पार करून पुढे जाऊन योगी चंद्रप्रकाशापर्यंत जातो आणि मग परत येतो. हा पितृयान मार्ग आहे, म्हणजे झूर आणि अंधाराचा मार्ग आहे किंवा पूर्वजांचा मार्ग असंही म्हटलो, जो पूर्वजन्माकडे घेऊन जातो. जे लोक फळाच्या अपेक्षेने देवांना यज्ञ आणि इतर दानधर्माची कामे करतात ते या मार्गाने चंद्रलोकात जातात आणि त्यांच्या दिव्य कर्मांची फळे संपल्यावर याच जगात परत वापस येतात. त्यांना त्यांच्या वैयक्तिक वासना संतुलानुसार अभिव्यक्ती आणि पूर्ततेसाठी तीव्रतेने तळमळणाऱ्या इच्छित देहामध्ये परत यावे लागते. जय गुरुदेव, जय पदशरणम. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം അധ്യായം 8 ശ്ലോകം 25. ധൂമോ രാത്രിർതഥാ കൃഷ്ണ ഷൺമാസാ ദക്ഷിണായനം തത്ര ചാന്ദ്രമാസം ജ്യോതിർയോഗി പ്രാപ്യ നിവർത്തതേ. അതായത് മരണസമയത്ത് ശരീരത്തിൽ വാതവും കഫവും കൂടുതലാകുമ്പോൾ അന്ധകരണത്തിൽ അന്ധകാരം നിറയുന്നു. അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രവർത്തനശേഷി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ഓർമ്മശക്തി നശിക്കുകയും മനസ്സ് വളരെ ചഞ്ചലവും കലുഷിതവുമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാണൻ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നത് പോലെ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അഗ്നിയുടെ തേജസ് ക്ഷയിക്കുകയും എല്ലായിടത്തും ധൂമം അഥവാ പുക പോലെയുള്ള അവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ശരീരത്തിനകത്തുള്ള അവസ്ഥയാണ്. പുറത്തെ പരിതസ്ഥിതിയും ഇതുപോലെ പ്രതികൂലമാകുമ്പോൾ, അതായത് കറുത്ത പക്ഷം, രാത്രി, ദക്ഷിണായന കാലം, ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഒരുമിച്ചു വന്നാൽ ബ്രഹ്മത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യമല്ല. ഇത്തരം ദുരവസ്ഥയിൽ ശരീരം വെടിയുന്നവർക്ക് പരമഗതി ലഭിക്കാതെ ചന്ദ്രലോകം വരെ മാത്രം എത്തി പിന്നീട് വീണ്ടും ജനനമരണ ചക്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടി വരും. ഇത് ധൂമമാർഗം അഥവാ പിതൃയാനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അന്ധകാരവും മടങ്ങിവരവുള്ള മാർഗം. ഞാൻ അകാലം എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാണപ്രയാണ സമയം ഇതുതന്നെയാണ്. ഇതിനു പുറമെ മറ്റൊരു മാർഗവുമുണ്ട്, അർച്ചിരാദി മാർഗം. അത് പ്രകാശമുള്ളതും സ്വതന്ത്രമായതും ആനന്ദവും സമാധാനവും നിറഞ്ഞതും ഒടുവിൽ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമാണ്. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. ജയ് സദ്ഗുരുദേവ്, ജയ് പദശരണം. धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चांद्रमसं ज्योतिर योगी प्राप्य निर्वर्तते. मृत्युकाल में वायु आ कफ के प्रकोप बढ़ जाइत अछि, जाहिसँ अंतःकरण में अंधकार भरि जाइत अछि. ओहि काल में इंद्रिय सब जड़बत भऽ जाइत अछि, स्मृति भ्रमित भऽ जाइत अछि, मौन बड चंचल आ व्याकुल भऽ जाइत अछि, आ प्राण चारू दिस सँ दैब कऽ औनाय लगैत अछि. शरीर में स्थित अग्नि के तेज नष्ट भऽ जाइत अछि आ चारू दिस धुआं पसरि जाइत अछि, जाहिसँ जीवन शक्ति समाप्त होमय लगैत अछि. ओहि काल में जीव एहन स्तब्ध अवस्था में पहुँच जाइत अछि जे ओ ने पूर्ण रूपेण मृत होइत अछि आ ने पूर्ण चेतना में रहैत अछि. जीवन अपन अंतिम सीमा पर अटकि जाइत अछि. एहन स्थिति में मौन, बुद्धि आ इंद्रिय सब के दबाव चारू दिस सँ पड़ैत अछि तऽ जीवन भरि के साधना के फल प्रायः व्यर्थ भऽ जाइत अछि. जखन हाथ में आयल वस्तुओं गवा देल जाइत अछि तखन फेर ओहि क्षण में ओकर पुनः प्राप्ति संभव नहि होइत अछि. प्राण के प्रयाण काल एहने दुर्दशा होइत अछि. ई तऽ भेल शरीर के आंतरिक अवस्था. आब जँ बाहरी परिस्थिति सेहो प्रतिकूल हुए, जेना कृष्ण पक्ष, रात्रि के समय आ दक्षिणायन के मास में सँ कोनो एकटा मास, तखन जकर प्राण प्रयाण काल एहन जन्म मरण के चक्र के लक्षण एक साथ उपस्थित हुए, से भला ब्रह्म स्वरूप के प्राप्ति के गप केना सुनि सकैत अछि. जे मनुख एहन दुर्दशा में देह त्याग करैत अछि से बड भेल तऽ मात्र चंद्रलोक धरि पहुँच सकैत अछि, आ किछु काल बाद फेर एहि लोक में आबि कऽ संसार के झंझट में फँसि जाइत अछि. हम जे प्राण प्रयाण लेल अकाल कहलहुँ, वएह ई अवस्था अछि. आ जन्म मरण के चक्कर में लऽ जाय वाला ई कष्टदायक बाट धूम्र मार्ग कहल जाइत अछि. एहिसँ फराक जे दोसर बाट अछि, अर्चिरादि मार्ग, ओ बड उज्ज्वल, स्वतंत्र, शांति आ आनंद सँ परिपूर्ण आ अंत में निवृत्ति रूप मोक्ष धरि पहुँचाबय वाला अछि. अखिल भारतीय संतमत सत्संग पंजीकृत
दिल्ली। मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।